Investor World Investor Week 2025, uh, which is hosted by IIBX in collaboration with IFSCA as well as various associations on various days. So from Monday till Friday, every day we are picking up one topic and we'll be reaching out to investors not only in India but outside India also. And uh, Shri Pradeep ji does not need any introduction because he has already addressed many of the IIBX outreach events, including the very large one which took place in Chennai. He has also addressed IBJA conference, World Gold Council events, as well as India Gold conference. Uh, so I now request uh, our respected Shri Pradeep Ramakrishnan ji to give us the opening address for flagging off this 1 week World Investor Week 2025 under the aegis of IOSCO and IFSCA. I don't know. I think there is some problem. Are you able to hear me? Yes, yes, sir. I can hear. We can hear you, sir. Yeah. I think my video has been disabled by the organizers. I don't know what is the problem, but anyway, I can speak like this. Not an Okay. issue. Uh, Thanks a lot, Ashok ji. I think you are a walking encyclopedia on all matters bullion. So thanks a lot for this program. So this World Investor Week is something which has been organized, by IFSCA, because we are also partners with IOSCO and along with SEBI, for this purpose. So essentially, the World Investor Week is generally happens around October, the first week of October or the second week of October. The idea is to, sort of first give an inkling of the ecosystem to the investors. A, B, make known the opportunities that are available for investors, and C, mainly the rights and responsibilities of investors. And lastly, you also know, okay, no, what are the do's and don'ts for the investors. Now, the IABX is an ecosystem which has established itself, and it holds a plethora of opportunities for both the buyers and sellers in this particular jurisdiction, which is something of note. Now we are also, we can so we also expect that this year will be the year of the retail. So far, it has been, a lot of institutions have actually played their roles here, and as much as the capital markets ecosystem is also concerned, we expect it's going to be a lot of retail this year. So similarly in the bullion also, because once there are more participants, then it makes the market that more vibrant, and that can be brought in by retail participants is what our 2 cents is, which I'm sure will happen. So today the topic is a very niche topic. It's on risk management, price risk management on gold and silver. So we have got experts who are going to take you through today's seminar. And like Ashok ji very rightly said, we are not just going to stop here. It is going to be a week-long program. We are also going to have experts from outside as well as from IFSCA who will be joining you in this program during this week. So without wasting much time and without much ado, I would hand the mic over back to Ashok ji with the best wishes for this program to be make it a success. Now, I would also like to tell you that in case you have any suggestions during the course of this meeting, in case that you come across something which can make this a very vibrant ecosystem, please don't fail to send it to Ashok ji, who can then probably add his views and then send it to us, to IABX, and then IABX can send it to us. So this is something which I would want to sort of give it as a parting shot. I wish the conference all success. Sir, you're on mute.
Thank you, Pradeep ji. Sorry, there was some. That video initially was not on, Yeah. but sorry, your voice was there, and now we are all able to see you. Thank you for Thank you. joining us and flagging off this week-long World Investor Week 2025, which we are happy to host along with. I mean, this is under aegis of ISCO, so along with IFSC and certainly SEBI, as you mentioned. And sir, I'll just take a cue from the sentence which you mentioned that this is a year for the retail investors. And I am also very thankful to IFSCA, sir, as you have prodded us as well as guided us to look at how can we make the BDR accessible to the retail investors. Sir, I am very happy to tell you that we are in the process of taking various approvals from our board committees as well as board. Our regulatory oversight committee has already approved it. Our risk management committee is slated to be tomorrow, and 17th is the board. So hopefully, if when we are able to satisfy all their questions, we will reach out to the regulator, that is IFSC and you, where if I can, it's not something which okay, let me say to the market that what we are trying to do as at the as IFSCA had guided us, that we are trying to launch fractionalized BDR. Yeah. And in a regulated environment, this is something for the first time for the gold investment. The investors will be able to access it. And sir, initially we'll launch it for gold, and later, as we see the progress and as we see the response, we'll also come back to IFSC and seek approval for the silver fractionalized BDR also. And so, sir, thank you for Yeah. guiding us. And I just have a request from the investors, from the market community, and from IIBX for IFSC to keep doing this fabulous work, which is not only of a regulator, but it is also a facilitator, it is also of a guide, it is also of a mentor, because many a times, sir, uh, as it is a very fledgling ecosystem, we falter sometimes. And we want to thank you that you have been able to hold our hands, give us some moral boosting, and guide us. Thank you very much, sir. Uh, Thank you. And I mean, of course, we are all part of the ecosystem, so we also learn as much as you teachers also. So I think it applies to the entire industry. Thank you so thank you. much. Thanks a Thank you. lot, and wish you all success. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, sir, for your opening comments. Friends, as we say, thanks to Executive Director IFSCA, Shri Pradeep ji. I also see some of the other IFSCA uh, officials are also there, and I welcome all of them. Sorry if I am not able to take out their names, but I could see earlier Mr. Ramneesh on the call, and maybe others also. Okay, so friends, uh, without taking much time, I will introduce you to Mr. Ranjit Singh, who is head of our business development and product development. He has prepared a very interesting presentation for you for gold futures and silver futures ahead. May I request let Ranjit and his team make this presentation. Please use the chat box for raising your questions. And at the end of the presentation, please raise your hands so that if there are any questions, we'll take those questions and we'll give answers. Apart from that, as our Executive Director IFSCA, Shri Pradeep ji mentioned, please also give us suggestions because today, when this inauguration of this week-long ISCO World Investor Week was done, and Chairperson IFSC also addressed one of the events. He also said that uh, as a regulator and as the semi-regulators or quasi-regulators, which we are the exchanges, we also keep looking for your feedback. You are on the ground. Sometimes, not sometimes, in fact, every time we take your feedback, which helps us to improve our things. So please also give us your feedback today, by if not today, then maybe by mail. And there are other seminars which will continue till
Friday and Saturday. So now over to Mr. Ranjit and his team. Thank you, sir. First of all, we'll thank our ED sir who has taken up time and to start this session, opening session with them. Thanks to Ashok sir also for addressing the audience. Before I start the presentations, I'll explain you what the topic basically is. That we want to make you understand how we can use gold and silver futures contract, which is currently running on IIBX, to hedge your price risk, which is currently prevailing in the market. There are certain process which you need to follow. There are certain process approval needed to take. Step by step, I'll guide you on that part. Basically, to our regulators, IIBX and ISCO World Investors Awareness Week, which we are. You have to share your screen, Ranjit. Oh, so yes, sir, yes, sir. Sorry. The first one. Yeah, I hope you can able to see it now. Yeah, visible. Okay, Yes, thank you. it's there. Please continue. Yes. This is as ED sir and Ashok sir also mentioned that this week is whole week is for investor awareness session. Started with we'll thank to IBGA for giving this opportunity to come and talk about price risk management. Presentation will be basically the topic is price risk management through gold and silver futures contract on IIBX. This is about IIBX, where is currently located. We are located in GIFT IFSC. IFSC is our regulator, and we are in GIFT City, IFSC zone. Basically, the role of IFSC plays as a which takes care of all the approval and process which are in IFSC, basically International Financial Service Center. They play basically a role of common for all, similar to what RBI, SAB, PFRD, and other regulator does in domestic exchanges on domestic market. IIBX is promoted by five MIs, started from MCX, and BSE has investment through his IFSC entity, India ICC and India INX, NSE, NSD, and CDSL. They are equally hold 20% each in IIBX through a company called International Bullion Holding IFSC Limited, which holds 100% stake in IIBX. This is how we journey started. December 2020 में ये frame हुआ था, where we got IFSCA notified International Financial and Bullion Exchange Regulation Act. Then in February 20, Finance Minister announced setting up International Bullion Exchange, GIFT IFSC. December 21, we got a license, and July 29, 22 is the day of historic where we started our live trading, inaugurated by our Honorable Prime Minister. Then in May 2023, our integration with IceGate has started, custom portal basically. Then in March 2020, we are State Bank who become a first TCM of IIBX. Then and Feb 2025, HDFC become the first bank to trade as under SCC, basically special category client as a nominated bank. This is about how the process works. Basically, we have a spot contract, basically who can import through as a qualified jailer or as a TRK holder, valid TRK holders. The process is like that. The seller will get the qualified supplier, basically we call it, will get the bullion into the GIFT IFSC vault, which are basically there are three vaults which have been approved by IPSCA in GIFT IFSC. Malkamis, Equal, and Brinks. Then once the deposit is done, you place a request for conversion your gold into BDR. Basically जो आप ट्रेड करेंगे इस ट्रांजैक्शंस में आप
बीडीआर में ट्रेड करेंगे, बुलियन डिपॉजिट रिसिप्ट। एवरी बुलियन जो बीडीआर जो क्रिएट होगा वो बैक बाय गोल्ड होगा। मतलब आप बीडीआर के रिसिप्ट से आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सा बार कहाँ पे है, किस वॉल्ट में है, और कौन सा प्योरिटी का है, कौन सा स्टैंडर्ड का है। तो इट्स वन टू वन कॉन्ग्रुएंस रहता है उसका। एज ए बायर मैं क्या करता हूँ, एक एडी लेटर रिक्वेस्ट करता हूँ कि एज ए क्यूजी आर टी आर की होल्डर टू बेसिकली मुझे आईएनआर टू यूएसडी जो रेमिट करना होता है फंड, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होंगे विल बी इन यूएसडी क्लियरिंग, डॉलर टर्म्स में होंगे। तो आपका डॉलर आएगा, फिर आपका बाई लिमिट एनेबल्ड होगा एज ए बायर। सेलर का लिमिट तभी एनेबल्ड होता है जब भी वो बीडीआर पे इन करता है, पे इन आप बीडीआर बोलते हैं उसको। फिर प्राइस में ऑफर, बिड और ऑफर प्राइस आते हैं, प्राइस मैच होती है, प्राइस मैच होने के बाद ट्रेड होता है। on every 30 minutes we do BDR settlement. Then we have a clearing part. Then we have where the transfer the BDR to the buyer demat account, where as a buyer QGR TR key holder, I'll place a request for extinguishing of my BDR to convert into physical gold. Then I do a bill of entry file होता है, custom clearance होता है। फिर फिजिकल गोल्ड को वॉल्ट से बाहर निकाल के जहां आप लेना चाहते हैं, जिस सेंटर में लेके जाना चाहते हैं, उस सेंटर में आपका वॉल्ट मैनेजर पहुंचाता है। ये एक प्रोसेस है फिजिकल गोल्ड लेने का। बेसिकली यहाँ पे जो आप लेफ्ट हैंड साइड का जो इकोसिस्टम देखेंगे आईआईबीएक्स का, इट कंप्राइजेस ऑफ क्वालिफाइड ज्वेलर्स टीआरकी होल्डर। बेसिकली दे हैव बीन परमिटेड बाय DGF10 IPSCA as well as IIBX to import gold under TRQ के लिए आपको वैलिड लाइसेंस लेना पड़ता है डीजीएफटी से। डीटीए क्लाइंट्स बेसिकली जो क्लाइंट जिसका, आपको एक सर्कुलर है, मैं आगे आपको सर्कुलर का डिटेल बताऊंगा। उस सर्कुलर में मेंशन है कि कौन कौन डीटीए क्लाइंट प्राइस पे रिस्क मैनेज कर सकते हैं। स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट्स जो आरबीआई ने परमिट किए, जो नॉमिनेटेड बैंक्स होती हैं जो बुलियन इंपोर्ट करती हैं, वो भी गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट कर सकती हैं आईआईबीएक्स के थ्रू अंडर एससीसी कैटेगरी। फिर होते हैं मेंबर, बेसिकली ट्रेडिंग मेंबर्स हम जो बोलते हैं। और सेलिंग साइड जो होता है, जो सप्लाई जो करता है, हम उसको क्वालिफाइड सप्लायर बोलते हैं। क्वालिफिक फिर वॉल्ट्स है, 3 वॉल्ट्स हैं यहाँ पे। गिफ्ट आईएफएससी में 2 वॉल्ट चेन्नई में है, आईआईडी है ये। और इंटरनेशनल क्लाइंट, आईआईडी का रोल होता है डिपॉजिटरी का रोल प्ले करती है, जो आपका डीमैट अकाउंट होल्ड करती है, जो बीडीआर आपका डिमिट क्रेडिट होगा आपके अकाउंट से। इंटरनेशनल क्लाइंट बेसिकली जो इंडिया के बाहर है, मतलब इस इंडिया के जुरिडिक्शन में नहीं आते, उनको इंटरनेशनल क्लाइंट्स के प्राइस रिस्क और या बीडीआर जो करना है, इन्वेस्टमेंट करना है एज एनआरआई या पीआई और सीआई कर सकती हैं। बेसिकली दिस ये एक सर्कुलर है जहाँ पे पीसीएम को परमिशन दी गई थी एज अ टीसीएम बन के आने का, स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट बनने का, आने का। ये सभी एनेबलर हैं बेसिकली बैंक्स के लिए जो आईआईबीएक्स पे पार्टिसिपेट कर सकती हैं। प्रोडक्ट इफ आई एक्सप्लेन, वी हैव डिफरेंट वेरिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। गिफ्ट सिटी और चेन्नई दो सेंटर्स हैं बेसिकली अभी करंटली। आगे भी हमारे प्लान है सेंटर्स और भी ओपन करने के, जो प्रोसेस में है। गोल्ड में 995 किलो बार आता है, गोल्ड मिनी में 100 ग्राम 999 प्योरिटी का बार आता है। उसमें भी 3 वेरिएंट है, आइधर आप एलबी में ले सकते हैं या यूएजीडी ले सकते हैं। आइधर आप टीआरकी होल्डर है तो टीआरकी का होल्ड ले सकते हैं। सिल्वर में 2 वेरिएंट्स है, एक 20 किलो वाला जो ग्रेन्स का कॉन्ट्रैक्ट है, 30 किलो वाला जो बार का कॉन्ट्रैक्ट है। उसमें भी 2 डिलीवरी स्टैंडर्ड्स है, एलबीएमए और यूएजीडी। जो मार्केट ट्रेडिंग आवर्स है और अभी 9 to 9:30 हो गया। अब एवरी 30 मिनट सेटलमेंट करते हैं, 4 फंड सेटलमेंट टाइम करते हैं। और T0 कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब सेम डे पे ट्रेड होगा, सेम डे पे सेटल होगा। 100% अर्ली पे इन ऑफ फंड्स ऑफ सिक्योरिटीज है। और कंपलसरी जो ट्रेड होगा वो बीडीआर के फॉर्म में होगा। डिलीवरी सेंटर गिफ्ट सिटी और चेन्नई है। ये थोड़े ग्लोबल इनिशिएटिव हैं जो फर्स्ट टाइम जो एज ए आईआईबीएक्स ने एडमिट रोल प्ले किया है। वो एक तो है कि जो हमारा जो बीडीआर है, एक 1 to 1 कॉन्ग्रुएंस होता है, मतलब अलोकेटेड जो बोलते हैं टर्म्स उसको। मतलब हर बीडीआर के पीछे एक गोल्ड आइडेंटिफाई होता है उस। और एवरी 30 मिनट्स हम बीडीआर सेटलमेंट करते हैं। मान लो आपने 929 को भी अगर ट्रेड किया होगा तो 930 तक आपके बीडीआर आपके क्रेडिट हो जाएगा डीमेट अकाउंट में।
डायरेक्ट पे आउट है जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था बीडीआर को, जो बायर्स को जाता है डीमैट अकाउंट से। हम लोग जो क्लियरिंग और में ट्रेडिंग मेंबर के यहाँ जाता नहीं है, बस उनके यहाँ एक फाइल क्रिएट हो जाती है। और 4 फंड सेटलमेंट करते हैं जो सप्लायर्स हैं उनके लिए। मेन इंपॉर्टेंट है प्राइस रिस्क मैनेजमेंट, जो जिसके लिए हम आज यहाँ पे जुड़े हुए हैं कि प्राइस और रिस्क मैनेजमेंट कैसे आप कर सकते हैं। करंटली आप करते भी होंगे दूसरे एक्सचेंजेस की। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है मार्जिन पीरियड जो इंटरनेशनल मार्केट से लिंक्ड है। मतलब जो भी आप यहाँ ट्रांजैक्शंस देखोगे, यूएस डॉलर पर ट्रांस होगा, एक्स यू यू यो प्राइस होगा या एक्सआईजी का जो प्राइस जो चलता है इंटरनेशनल हुआ। और फ्यूचर में एक फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि आइदर आप कैश सेटल कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, आइदर आप अगर इंटेंशन मैचिंग होती है तो डिलीवरी भी ले सकते हैं। ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी है। 1 किलो का कॉन्ट्रैक्ट है गोल्ड में और 30 किलो का सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट है, ये अभी जो करंटली हमने रन किया है। और मार्केट ट्रेडिंग आवर्स है सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक। एक आरबीआई का सर्कुलर है, अगर आप सर्कुलर के रेफरेंस में पकड़ोगे, जो 20 दिसंबर 12 दिसंबर 2022 में आया था, उसका जो अपडेट 15 अप्रैल को हुआ था, अमेंड हुआ, जिसमें उन्होंने सिंपली एक वर्ड वेरी यूज किया है कि एनी एंटिटी अदर देन इंडिविजुअल who have a risk in gold or silver prices, they can do hedging on IFSC exchanges। उसके लिए एक प्रोसेस होगा। मैं आपको एक प्रोसेस बताऊंगा कि क्या होगा। हेजिंग का अगर आपको लेना है, प्रोसेस लेना है, एक सिंपल स्टेप होता है कि पहले आप उस एडी बैंक के पास चाहिए जहां आपका ऑलरेडी ट्रांजैक्शन चल रहा होगा। एडी बैंक को आपको एक रिक्वेस्ट प्लेस करनी होती है कि मुझे हेजिंग के लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड करें। हेजिंग फैसिलिटी का प्रोवाइड का बेसिकली मतलब होता है कि कितने किलो की आपको हेजिंग के लिए वो परमिशन देते हैं। फिर एक आपके लिए स्पेशल अकाउंट खुलता है जहाँ पे डॉलर का आपके मार्जिन के लिए पे मार्क टू मार्केट के लिए काम आता है, राइट। आइधर और आरबीआई ने एसबीएल से भी परमिट दी है कि एसबीएलसी के थ्रू भी आप ले सकते हैं एज ए मार्जिन देके। और आपकी जो भी पॉलिसी रहेगी वो अप्रूव्ड आपकी बोर्ड से होनी चाहिए। आपका नेसेसरी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज होनी चाहिए। और आपकी जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर रहेगा वो एनुअल सर्टिफिकेट ऑन हेजिंग ट्रांजैक्शन रेमिटेंस का डिटेल देगा। आ, इसमें कौन कौन हेज कर सकता है? बेसिकली वी हैव रिफाइनर्स, बुलियन डीलर्स, बुलियन इंपोर्टर, डोमेस्टिक ज्वेलर या ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स। अगर सिल्वर में है तो सिल्वर में इंडस्ट्रियल यूजर्स भी बहुत हैं। और रेजिडेंट अदर देन इंडिविजुअल, एनी entity which has exposure in gold or silver can do hedging as per RBI circular, which is a enabler for basically this is the first time has happened कि किसी भी इंडियन एंटिटी को डॉलर टर्म्स में हेज करने के लिए परमिशन गोल्ड और सिल्वर में दी है। करंटली देखिए सर, हमारे पास 8 कॉन्ट्रैक्ट्स रनिंग रहते हैं, 13 मंथ का पीरियड होता है गोल्ड में, राइट। और अभी करंटली ये कॉन्ट्रैक्ट है, हमने रिक्वेस्ट प्लेस की है कि इसको मंथली कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, बिकॉज आप अगर सीएमई का कॉन्ट्रैक्ट भी देखो, क्योंकि सीएमई के कॉन्ट्रैक्ट भी अभी मंथली हो गए हैं। और ट्रेडिंग यूनिट जो गोल्ड में है वो 1 किलो का है। प्राइस कोड जो आपको दिखेगा डॉलर पर ट्राउंस में दिखेगा। मंडे टू फ्राइडे होगी सुबह 9 से लेके 11:30 बजे तक। इनिशियल मार्जिन 6% प्लस 1% 7% है। आइदर वार जो भी हायर रहेगा वो मार्जिन आपको अप्लीकेबल होगा। और जो डिलीवरी बेस हमने रखा है कि इंटेंशन मैचिंग होगी, अगर बायर अगर सेलर दोनों अग्री करते हैं कि हमको डिलीवरी लेनी है और देनी है तभी डिलीवरी मैच होगी, अदरवाइज कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। सिल्वर में 9 कॉन्ट्रैक्ट्स रनिंग रहेंगे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जो उसका पीरियड 14 महीने का रहेगा। वो भी हमने अभी रिक्वेस्ट डाला है रेगुलेटर को टू चेंज इट टू मंथली, बिकॉज सीएमई ने भी अभी मंथली कॉन्ट्रैक्ट कर दिए हैं वहां पे भी। और 30 किलो का कॉन्ट्रैक्ट साइज है हमारा। प्राइस को डॉलर पर ट्रांस रहेगा। टाइमिंग सुबह 9 to 11:30 चलेगा। मार्जिन 10% प्लस 1 प्लस ELM है, मतलब 11% के आसपास मार्जिन है। आइधर वार जो भी अगर अगर उस टाइम में 12% या 13% रहा तो वो मार्जिन आपको अप्लीकेबल लगेगी कि उस टाइम पे क्या वॉलिटिलिटी चल रही होती है उस कॉन्ट्रैक्ट में। और डिलीवरी बेस्ड मैचिंग
मैंने रखा, जैसे आपको बताया कि डिलीवरी बेस का मतलब बायर एंड सेलर दोनों अग्री करते हैं तभी डिलीवरी मैचिंग। ये प्रोसेस बता रहा था कि क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है। आपको अगर आईआईबीएक्स पे हेज करना है तो पहले आपको हेज फैसिलिटी लेनी पड़ेगी एडी बैंक्स के पास। फिर आपका एक स्पेशल अकाउंट खुलेगा। फिर जो भी डोमेस्टिक एंटिटीज हैं वो अकाउंट में वो आपका आईएनआर टू यूएसडी कन्वर्ट होके आपकी जो मेंबर के साथ आप ट्रेड करना चाहते हैं आपको वहाँ अकाउंट खुलवाना पड़ता है। बेसिकली जैसे आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं या कोई भी डोमेस्टिक एक्सचेंज में ट्रेड करते हो तो अकाउंट खुलवाते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होता है। ट्रेडिंग मेंबर और ट्रेड क्लियरिंग मेंबर जो भी आइडेंटिफाई करोगे, हमारे लिस्ट है वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। वहां पे अकाउंट एक हो गया आपका, डॉलर अपने रिमिट कर दिए, मार्जिन आ गया। फिर आप पोजीशंस ले सकते हैं। फिर पोजीशंस में भी मार्क टू मार्केट चलता है। मार्जिन आपको अगर अगर आपके फेवर में है तो आपको मार्क टू मार्केट मिलेगा, पे इन मिलेगा। अगर आपके अनफेवर में है तो आपको मार्केट मार्केट पे इन करना पड़ता है। ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट स्पेक्स का पूरा डिटेल्स डाला है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसा दिखेगा। बेसिकली पहला 3 महीना कंसेक्यूटिव रहेगा, उसके बाद फेब अप्रैल जून अगस्त अक्टूबर दिसंबर है। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये करंट कॉन्ट्रैक्ट है, चेंजेस के लिए हमने रिक्वेस्ट डाल रखी है। जो इसके बाद हर महीने का आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखेगा, मतलब टोटली आपको 12 महीने के कॉन्ट्रैक्ट दिखेंगे। सेटलमेंट जो है T+1 पे है और ट्रेडिंग यूनिट डॉलर पे 1 kg का है, यूएस डॉलर पर ट्रायंस है। और जो टिक साइज है, मिनिमम प्राइस मूवमेंट जो बोलते हैं हम उसको 0.01 है। ये पूरे डिटेल्स हैं, ये आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। अगर किसी को डिटेल नहीं जानना चाहते तो चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ इस पे। जो सिल्वर में जो है उसमें भी 3 कंसेक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट मंथ, मतलब हर फर्स्ट 3 मंथ्स मंथली रहेंगे। उसके बाद मार्च मई जुलाई सितंबर दिसंबर। लेकिन उसको भी चेंज के लिए हमने रिक्वेस्ट डाला है। जैसे चेंज हो जाएगा वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 30 किलो का कॉन्ट्रैक्ट है, डॉलर पर ट्रांस आपका कोट रहेगा, राइट। ये पूरे उसके मार्क टू मार्केट है, T+1 पे सेटलमेंट होता है जैसे मार्क टू मार्केट का, मार्जिन पे 8 का। ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे डिटेल्स पे। थैंक यू। किसी को कोई क्वेश्चन हो चैट बॉक्स में या हैंड रेज करके भी पूछ सकते हैं। पंकज जी कुछ क्वेश्चंस आए हैं? नहीं तो चैट में तो नहीं आया कोई क्वेश्चन। रंजीत, आई हैव अ रिक्वेस्ट। जी सर। प्लीज आप जरा प्रोसेस बता दीजिए कि व्हाट दे शुड फॉलो व्हेन रीचिंग आउट टू बैंक्स। ओके। और ओके। क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पीस है ना, कि बैंक से पहले उनको जो फैसिलिटी लेनी है जी जी। उसके लिए उनको क्या करना चाहिए, कौन से बैंक्स हैं जो दे सकते हैं फैसिलिटी। हाँ, और अगर आप बैंक से अप्रोच कर रहे हैं एंड यू आर नॉट बीइंग गिवन द फैसिलिटी, आप हमको बताइए, हम आपकी हेल्प करेंगे, या और जो बैंक्स विलिंग हैं आपको फैसिलिटी देने के लिए उनके बारे में बताया जाएगा। सो प्लीज एडवाइस, बिकॉज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। दूसरा, जी अगर पॉसिबल हो तो आप प्लीज कुछ सिनेरियो भी बताइए कि उनको कब हेजिंग करना चाहिए और कैसे हेजिंग करना चाहिए, ठीक है। कि उनकी क्या पोजीशन है, क्या है, कोई ऑर्डर है उनके पास, एक्सपोर्ट का ऑर्डर है या ऑलरेडी उनकी इन्वेंट्री है, या किस किस स्टेज पे उनको हेजिंग करना चाहिए। दूसरा, एक और इम्पोर्टेंट पीस आपको बात करना है कि बहुत से लोग जो हैं वो जी अपनी एंटिटीज बाहर रख के दुबई में या सिंगापुर में सब्सिडरीज हैं, या कुछ उनके वहाँ के ब्रोकर्स हैं, थोड़ा सा उनके साथ जो अनऑथराइज मीन्स के साथ भी कुछ लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं कॉमेक्स में। तो ये ठीक। एक ऑल्टरनेट है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू मेंशन टू एवरीवन। तो आप एक एक करके जरा बताइए। ओके सर, देखिए किसी को भी अगर हेज पोजीशंस लेनी होती है, डिपेंड। पहले जरा बताइए कि बैंक से कैसे करना है सब काम, देखिए वहां से शुरू करिए प्लीज। हाँ, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। ऐसे ही प्रोसेस जो होता है आपके जो भी एडी बैंक, अगर मान लो कोई HDFC ICICI या SBI है, या जो भी बैंक जिस बैंक के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं, उस बैंक के पास आपको अप्रोच करना है और बैंक को रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे हेज फैसिलिटी की एक प्रोविजन दी जाए, जहाँ पे आपको बेसिकली आपका क्या हेज पोजीशंस बनती है, कितनी बनती है, कितनी क्वांटिटी क्या बनती है, उसके हिसाब से आपको एक
लिमिट दी जाएगी। लिमिट का मतलब है कि कितना किलो या कितने टन तक आप पोजीशन ले एज पोजीशन ले सकते हैं। दूसरा एक स्पेशल अकाउंट खुलता है आपके लिए, जहाँ पे वो बेसिकली वो जहाँ से मार्जिन फ्लो मार्क टू मार्केट के लिए वो अकाउंट काम आता है। बेसिकली हम उनको मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि आरबीआई ने बोला है कि आपको मॉनिटर भी करना है कि कितना किसका मार्जिन जा रहा है, कितना मार्जिन आ रहा है, मार्क टू मार्केट कितना आ रहा है। फिर दूसरा प्रोसेस क्या होता है, एक बार आपके पास लिमिट आ गई, एक ब्रोकर को आइडेंटिफाई करना होता है कि किस ब्रोकर के थ्रू आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। हमारे फुल टोटल 20 ब्रोकर्स हैं यहाँ पे, जिसमें से 4 बैंक है और 16 नॉन बैंक है। आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, हमारे वेबसाइट में भी आपको मिल जाएंगी डिटेल्स। अगर कोई जानना चाहता है तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लास्ट में छोड़ता हूँ चैट पे, जहाँ से आपको डिटेल मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। एक बार आपका आपका अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट खुल गया तो प्रोसेस क्या होता है, आपको मार्जिन देना पड़ता है। ऐसे डॉलर डॉलर टर्म्स में आपके मार्जिन आएगा। उस स्पेशल अकाउंट के थ्रू ही रूट होगा आपका जो भी जो मार्जिन आपका आना है। मार्जिन आने के बाद फिर आप आपकी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। फिर होता है मार्क टू मार्केट जो चलता है, T+1 पे हम सेटलमेंट करते हैं, या पे इन आएगा या पे आउट होता है, डिपेंड आपका क्या पोजीशन बनी है और मार्केट क्या क्लोज हुआ है। ये तो मोटा मोटी आपको प्रोसेस बता दिया है। दूसरा क्या होता है हेजिंग की प्रोसेस में, क्या होता है कि एक एक होता है कि मेरे को एक्सपोर्ट करना है। बेसिकली मतलब मेरे को माल लिया है और मुझे माल वापस कुछ उसकी ज्वेलरी बना के मुझे भेजना है। ये यहाँ पे दो सिनेरियो बनते हैं। इधर आप एक सिनेरियो बनता है कि जहाँ पे अपने प्राइस आपने पहले लॉक इन कर लिया है कि जिस जिस दिन मैं माल लेता हूँ उसी दिन मैंने प्राइस लॉक इन करके उसकी ज्वेलरी बना के 30 दिन या 60 दिन का जो भी पीरियड होता है मुझे जब भी माल बेचना होता है, उस 30 और 60 दिन का जो पीरियड में जो आपका प्राइस रिस्क रहता है, बिकॉज आपने जो प्राइस फिक्स कर लिया है लेकिन आपका सेलिंग प्राइस फिक्स नहीं हुआ आपके कस्टमर के साथ जो आपको एक्सपोर्ट करना, तो उस टाइम में क्या होता है आपका प्राइस रिस्क इधर आपके फेवर में भी आ सकता है मार्केट, इधर आपके अनफेवर में भी जा सकता है। दोनों सिनेरियो बन सकते हैं। उस सिनेरियो को मुझे नहीं जज करना है कि मार्केट किस तरफ जाएगा, मुझे कहाँ जाएगा। तो उस रिस्क को मुझे क्या करूंगा, जैसे मैंने माल ले लिया है, मतलब मैंने प्रोक्योर कर लिया है गोल्ड, तो सामने सामने मैं फ्यूचर बेच के उसको मैं हेज कर लूंगा। इसमें दो सिनेरियो हो सकते हैं कि जिस दिन आप डिलीवरी दे रहे हैं उस दिन में इधर भाव ऊपर गया तो स्पॉट में आपको फायदा होगा, फ्यूचर में आपको नुकसान होगा, बिकॉज आपने फ्यूचर बेच रखा था। लेकिन यहाँ पे आप जब भी आप हेज करते हैं, हेज का मतलब होता है एक साइड का गेन होता है एक साइड का लॉस होता है, तो एक साइड का गेन जो लॉस हुआ वो गेन के सामने ऑफसेट होता है। हाँ जी। दूसरा सिनेरियो बनता है कि जिस दिन आप भाव काटोगे आपके सप्लायर से उस दिन आपका स्क्वायर ऑफ कर लीजिए फ्यूचर पोजीशन। एक तो ये सिनेरियो हो गया। एक हो गया कि माल आपको माल बना के देना है, प्राइस फिक्स नहीं है, ना इधर आपने प्राइस गोल्ड के प्राइस भी फिक्स नहीं किया है, राइट। दूसरा सिनेरियो होता है कि आपके पास गोल्ड ले लिया है, स्टॉक में पड़ा हुआ है, आपका स्टॉक एक लेके उसकी जो इन्वेंट्री जो सेल होती है, इन्वेंट्री सेल होते बोले वो 60 दिन 90 दिन 120 दिन कुछ भी टाइम लग सकता है। तो उस टाइम की जो पीरियड में जो आपका गोल्ड लेके आपने जो स्टॉक किया है उस प्राइस रिस्क को कवर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अपनी सेल पोजिशंस क्रिएट कर देता हूँ हाँ फ्यूचर्स पे। ये दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि कभी कभी डोमेस्टिक मार्केट डिस्काउंट में चलता है, कभी इंटरनेशनल मार्केट के कंपैरिजन में डिस्काउंट चलता है या प्रीमियम चलता है। डिस्काउंट या प्रीमियम के टाइम पे आपका अगर जो पोजीशंस बनती है, अगर मतलब आपको उस प्रीमियम के डिफरेंस को खाना लेना है, मतलब कि जो डिफरेंस चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट में, उस टाइम में भी आपकी पोजीशन हेज करके आप उस डिफरेंस को भी ले सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे सर ने आपको बताया कि बहुत से लोगों ने आ, कई अरेंजमेंट होते हैं आपकी, शायद किसी आपकी कोई दुबई की एंटिटी होती है या किसी के थ्रू आप रूट करते भी हैं। यहाँ पे जो हम आपको जो फ्यूचर पोजीशन जो दे रहे हैं इट इज सिमिलर टू कॉमेक्स, जो कॉमेक्स का भाव चलेगा उसके हिसाब से आईबीएक्स का गोल्ड और सिल्वर फ्यूचर्स भी चलेंगे। तो मतलब मैं आपको कॉमेक्स का एक रेप्लिका दे रहा हूँ, वो भी ऑफिशियल दे रहा हूँ। आपकी जो इंडियन बुक्स हैं जो करंटली आप यूज करते हैं, राइट, डोमेस्टिक मार्केट की प्रोक्योरमेंट के लिए सेल्स के लिए, उसी बुक्स के थ्रू आप यहाँ पे पोजीशन बिठा के आप ना हेज प्राइस
अपना प्राइस रिस्क कवर करके ले सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक सेक्शन है डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग को आईटी सेक्शन 43(5) के अंडर बिजनेस इनकम और लॉस गिना जाता है। तो मतलब आपकी जो लॉस प्रॉफिट जो आपकी बुक्स में हो रहा है, उस लॉस प्रॉफिट के सामने जो फ्यूचर में जो लॉस प्रॉफिट हो रहा है उसके सामने अपना पोजीशन ऑफसेट करके आपका आईटी फाइलिंग हो सकती है प्रोसेस। ये आईटी 43(5) के अंडर है, 43(5) सबसेक्शन 5 बोलते हैं इसको। उसके थ्रू ये आपका एक्शन ले सकते हैं। अगर किसी को फिर भी कहीं दिक्कत आती है कि आपका कोई बैंक आपको लिमिट नहीं दे पा रहा है या कुछ किसी कारण नहीं प्रोसेस हो पा रहा है, मैं अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चैट पे छोड़ता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर कहीं दिक्कत आई आपको तो मुझे आप कनेक्ट कीजिए, मैं आपको राइट बंदे से कनेक्ट करा के आपका जो भी प्रोसेस है आपको करा के दे देंगे। ये क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया? इस पे बोलिए। Any questions, please? Anyone have question? Kindly ask the question. चालू कर। टॉगल कर। Is there any chat में कुछ है क्या? Any chat में आपने अपना नंबर्स वगैरह डाल दिया है? ऊपर ऊपर से। रंजीत, नहीं नहीं सर, रंजीत, विपिन और मुकेश, आपने अपने नंबर और मोबाइल नंबर और ईमेल बीडी वाला डाल दीजिए। यस सर। That any questions they can reach out. तो सिद्धार्थ का एक क्वेश्चन है चैट में। हाँ बताइए। Why will I should choose IIBX instead of MCX commodity when IIBX is costlier and has more compliance like deal in USD? मैं सिर्फ एक छोटा सा चीज बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये बिल्कुल अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। सो आपके पास जो एमसीएक्स में है वो रुपी बेस्ड हेजिंग है, जो आपकी गोल्ड की जो रुपी प्राइस है उसके ऊपर है। प्लीज नोट कीजिए, जैसा हमने बताया भी था कि जो आईआईबीएक्स पे हेजिंग है वो यूएस डॉलर टर्म्स में है। और मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो हैं जो कॉमेक्स को रीच आउट कर रहे हैं थ्रू सम ब्रोकर्स या अपनी सब्सिडरीज या एसोसिएट्स के थ्रू या ब्रांचेस के थ्रू आउटसाइड इंडिया, ये अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज तक डॉलर टर्म्स में गोल्ड हेजिंग अलाउड नहीं की थी। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये एक परमिशन दी है जिसके तहत एनीबडी हु इज हैविंग अ गोल्ड प्राइस रिस्क इन इंडिया, who is not an individual, can hedge their gold price risk in dollar terms on IBX. So ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, जैसे चीज एंड चॉप। ठीक है, तो इनके प्रोडक्ट्स भी जो हैं वो अलग हैं और उसका यूज केस भी अलग है। जहां तक आपने बोला कि महंगा है सस्ता है, आपने शायद प्राइसिंग अभी देखी नहीं है। आप प्राइसिंग देखेंगे तो आप थोड़ा सरप्राइज हो जाएंगे कि क्या है। आईबीएक्स की हेजिंग की आप प्राइसिंग देखिए तो आपको पता लगेगा कि वो कितना इजी है। हाँ, आपने सिर्फ बोला कि डॉलर भेजना पड़ेगा, तो ऑफ कोर्स डॉलर तो भेजना पड़ेगा क्योंकि ये इंटरनेशनल एक्सचेंज है और आपको डॉलर टर्म में हेजिंग के लिए पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परमिशन दी है। तो कोई भी नया चीज जब आएगा तो उसको सिस्टम में डालने के लिए आपको भी अपना एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा। लेकिन जैसा आपका फीडबैक है उसी तरह का कुछ फीडबैक और जगह से भी आया था कि इसको कैसे ईज किया जाए। तो मैं आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू कि हमारे रेगुलेटर इज ऑलरेडी सीज्ड ऑफ द मैटर। हम लोगों ने भी रिप्रेजेंटेशन दिया है कि किस तरह से जो डॉलर फ्लो यहाँ पे हो रहा है उसको हम कैसे ईज आउट कर सके, सो दैट वो टाइमली आ सके। नंबर वन, टाइमली तो खैर आता ही है, लेकिन आपको इन आउट वगैरह करने में इतना दिक्कत ना हो, क्योंकि कभी आपको मार्क टू मार्केट भेजना भी पड़ेगा
और आपको रिसीव भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी किस तरह से उसको ईज किया जाए उस पे ऑलरेडी काम चल रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऑलरेडी जो लोग हमसे बात कर रहे हैं और जिस तरह का इसका जो रिस्पांस है, क्योंकि करीब मेरे पास जो नंबर है 20 से ऊपर की एंटिटीज हैं जिन्होंने वेरियस बैंक से लिमिट ले ली है, क्योंकि उनको एक काफी एडवांटेज दिखता है यहाँ पे इंटरनेशनल प्राइस के बेसिस पे डॉलर टर्म में हेज करने के लिए। कॉस्टिंग आपको मेरी टीम बताएगी, यू विल बी सरप्राइज कि हाउ चीप इट इज। आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, बट दैट्स हाउ इट इज। हाँ जी, नेक्स्ट। The Srivastava Ganpati का है, Sir, please explain the spot price basis for this contract. Are there any market makers? सॉरी, मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हैं? स्पॉट प्राइस? Spot price basis for this contract. And are there any market makers? हाँ, सो देर इज नो स्पॉट प्राइस बेसिस। यहाँ पे तो सीधा फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, एंड जो भी फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट अलाइव है वो ही कॉन्ट्रैक्ट चलता है, तो उसके ऊपर जो प्राइसिंग आपको मिलेगी वो फ्यूचर्स की मिलेगी। लेकिन अगर मैं आपकी बात जो समझना चाह रहा हूँ वो उस पे मैं आता हूँ शायद। आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्राइस जब कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर हो रहा है तो उस समय किस प्राइस के ऊपर उसकी सेटलमेंट होगी, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो। मेरे ख्याल से वही क्वेश्चन है। तो उसी क्वेश्चन को देखते हुए मैं बताना चाहूंगा कि जो है, आप आईआईबीएक्स के ऊपर जो प्राइसिंग है, आईआईबीएक्स के प्राइस के ऊपर वो सेटल होता है। एंड हम आईआईबीएक्स में इंश्योर करते हैं कि जो प्राइस है वो इंटरनेशनल प्राइस के बहुत पास रहेगा। इसका एक पूरा एक मैकेनिज्म बना हुआ है, उसके हिसाब से होता है। आ, दूसरा पॉइंट क्या बोला था उन्होंने? Are there any market makers? हाँ, ऑलरेडी। तो आई विल बी हैप्पी टू नो कि हम लोगों ने एक सर्कुलर निकाला था जिसमें हमने बिड्स मंगाई थी मार्केट मेकर्स के लिए। तो मार्केट मेकर की बिड्स आ चुकी हैं। सक्सेसफुल मार्केट मेकर को हम लोगों ने चिट्ठी दे दी गई है, और जैसे ही उनका एल्गो रेडी होता है हम उसके लिए एक सर्कुलर रिलीज कर देंगे। और ये मेरे ख्याल से अगले 20-25 दिन के अंदर ये सर्कुलर आ जाना चाहिए। पर क्वेश्चन अच्छा है, मार्केट मेकर ऑलरेडी अपॉइंट हो चुका है, वो अपना एल्गो पे काम कर रहे हैं। Sir, one last question है Please. पारेश शाह का, for industrial use when order is booked under advance license allowing duty free import is possible via IBX. फिर से बोलिए सर। For industrial use हाँ। when order is booked under advance license हाँ। allowing duty free import is possible via IBX. हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखिए, ड्यूटी फ्री गोल्ड के इंपोर्ट के लिए काफी काम चल रहा है, और अभी हम प्रोसेस में बताता हूँ क्या क्या हो रहा है, धीरे धीरे बताता हूँ। पहली चीज है कि जिनके पास एडवांस ऑथराइजेशन का लाइसेंस है डीजीएफटी से, तो हमारी कोशिश ये है कि वो ट्रांजेक्शन हो जाए। तो ऑलरेडी एक टेस्ट ट्रांजेक्शन अंडर वे है। वो जैसे ही उसका फिजिकल क्लियरेंस हो जाएगा, हम खुद एक प्रेस रिलीज निकालेंगे मार्केट में, जिसके थ्रू आपको बताया जाएगा कि एडवांस ऑथराइजेशन में आप आ सकते हैं। पर आप थोड़ा 1-2 दिन रुक जाइए, क्योंकि उसका बिल ऑफ एंट्री वगैरह सब फाइल हो चुका है। बस हम फिजिकल उसका, क्योंकि कस्टम्स को एक चीज और उसमें चेक कर रहे हैं, वो चेक करेंगे तो वो बता देंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो एंटिटीज एसईजेड में है, वो जो एसईजेड में एंटिटीज हैं वो यहाँ पे से हमारे से गोल्ड ले सकती हैं। सो देखिए, दो चीजें हुई। एसईजेड एंटिटीज इन एनी केस आर परमिटेड टू इंपोर्ट गोल्ड फ्रॉम आउटसाइड, नंबर 1। नंबर 2, एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर्स आर आल्सो परमिटेड टू इंपोर्ट गोल्ड फ्रॉम आउटसाइड। तो वो दोनों के लिए यहाँ पे आईबीएक्स से गोल्ड लेना डायरेक्टली परमिटेड है। इसके अलावा हम लोग का ऑलरेडी बहुत सारी एक्सपोर्टर्स की बॉडी ने रिप्रेजेंटेशन दिया है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स को कि आप परमिट करें आईबीएक्स के थ्रू ड्यूटी फ्री गोल्ड एक्सपोर्टर्स को देने के लिए। मैं आपको अभी इतना सा ही बताना चाहूंगा कि इस पे काफी काम हो चुका है, और आप कुछ दिन रुकिए, बस सर्कुलर आने ही वाला है। लेकिन तब तक आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि अभी उस पे कुछ जगह पे डिस्कशन चल रहा है। तो जब तक डिस्कशन पूरा नहीं होगा मैं आपको कुछ फॉर्मली बता नहीं पाऊंगा। लेकिन कोशिश हम सबकी यही है कि किस तरह से हम आप सबके लिए सर्कुलर इशू करा पाए कि एक्सपोर्टर्स हमारे यहाँ से 0% ड्यूटी पे किस तरह से गोल्ड ले रहे हैं। दिस आई वुड लाइक टू ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश दैट the holders of advance authorization license from DGFT
There is a one test transaction already underway, and we are just waiting for the final clearance from customs. The bill of entry, etc., has been, those numbers have already been generated in IceGate. So it's just one step away. And once that is done, we will come out with a press release. Number one. Number two, any entity which is in SEZ and meets the qualifying criteria for qualified jeweler can import gold through IIBX at 0% duty. For that, already SOP is in place. I'm also very happy to tell you that we are in advanced talks with some of the logistic partners to have a vault in SEEP soon, and Manikanjan SEZ. So through SEEPs also we'll be able to provide exporters of jewelry who are in SEEPs gold. I mean, they can also take it today from us, and it can just go from here to there, from one SEZ to second SEZ under that transfer route. Third thing, that lot of exporters councils as well as various jewelers associations have reached out to Department of Commerce, and they have made a representation that they would like to take gold from IIBX for the purpose of export of jewelry at 0% duty. I am very happy to tell you that a lot of advanced work has taken place, and we will be able to very soon come up with some guidelines. Please give us some time, and as soon as we have clearance from various officials and regulators, we will be able to issue you a circular. Yeah. Thank you. Over to you, Pankaj ji. Any other question? No, the Paresh Shah ji ka, I hope even silver will be eligible for AA license. Silver will be eligible for AA license. हाँ, वो अगर आपको DGFT दे देगा AA लाइसेंस, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको सिल्वर. किसी और कोई सवाल है? अदरवाइज वी एंड द सेशन. आई थिंक सर किसी का कोई सवाल नहीं है. सो Pankaj, before you say final comments, let me thank you, Ibja, and all the participants who are there for patiently listening to us. And please keep encouraging us. Please keep asking questions. Please keep advising us, and please keep asking critical questions so that we keep on improving ourselves to serve you better. Thank you very much. thank you Ashok ji, and thank you the IBX team and IFSC team and Thank the World you. Group Council. पंकज जी, एक बार बता दीजिए, हमने चैट बॉक्स में सबके कांटेक्ट नंबर, ईमेल आईडी डाल दिए हैं. किसी को कोई भी कनेक्शन करना चाहते हैं तो कनेक्ट कर सकते हैं. ओके. थैंक यू पंकज जी. थैंक यू. थैंक यू ऑल.